جی چلیں چلیں جی آپ سوال کریں خواجہ صاحب۔ یہ جو کمندر کبوتر ہیں ان کی جو آنکھیں ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں لال ہوتی ہیں، کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ کہ نیلا رنگ ہوتا ہے۔ کلر کی ہوتی ہے، یہ ذرا لوگوں کو نظر ڈالیں۔ بیٹا میں نے آپ کو پہلے بھی اپنے پرانے کئی انٹرویوز میں بتایا ہوا ہے کہ یہ جو کمگر ہے نا، اصل لفظ یہ ہے کمانگر۔ دو بھائی تھے، فروز کمانگر اور نواب کمانگر۔ اتفاق سے میں نواب کمانگر کو میں ملا ہوا ہوں، نہایت شریف آدمی، اللہ انہوں کو جنت نصیب کرے۔ انہوں نے کبوتر تو چھوڑ دیے ہوئے تھے، پر میرے ساتھ انہوں کی ایک دن پوری ڈسکشن ہوئی تھی۔ بیٹا میں نے کمانگر کبوتر دیکھے ہوئے ہیں اپنے مرحوم دلاور خان صاحب کے پاس، اللہ ان کو جنت نصیب کرے۔ انہوں کے پاس جو ہیرا لال کبوتر تھے بیٹا، اب پھر میں آپ کو بیٹا کہہ کے ہی بتا رہا ہوں۔ بیٹا جو کمانگر کبوتر تھے نا، رنگ میں ہر کمانگر جب آپ پیور لگائیں گے، ایک تو وہ زیرہ بچہ ضرور نکالے گا، چاہے وہ پھیکا زیرہ نکالے چاہے وہ گوڑا زیرہ نکالے، یعنی کہ سفید زیرہ جیسے سفید زیرے۔ اور ایک اور، اگر ایک کمانگروں کا جوڑا آپ زیادہ دیر تک لگے رہنے دیں گے تو وہ خاکی بچے بھی ضرور نکالیں گے، خاکی گردن والے بھی۔ کمانگر جو پرانے کبوتر تھے نا، جو میں نے پرانے دیکھے ہوئے ہیں بیٹے، انہوں کی پتلی بریک ہوتی تھی، انہوں کی آنکھ میں ڈورا بالکل نہیں تھا ہوتا۔ جس طرح عمر زیادہ ہوتی جاتی تھی وہ اڑنا شروع ہوتے تھے، انہوں کی آنکھوں میں ڈورے آ جاتے تھے۔ آنکھ انہوں کی زیادہ لال نہیں تھی ہوتی، وہ ہوتی تھی مالٹے کلر کے چھلکے جتنی۔ اس کو آپ لائٹ ریڈ کہہ سکتے ہیں یا آپ اس کو اورنج کہہ سکتے ہیں۔ اورنج کہنا زیادہ بہتر ہے۔ مالٹے کا اورنج، ہم انگلش میں اورنج مالٹے کو کہتے ہیں، مالٹے کا چھلکا۔ انار بالکل نہیں، گندھاری انار نہیں۔ اگر آپ نے انار سے مناسبت کرنی ہے تو بیدانہ انار، بیدانے انار کا جو کلر ہے وہ آنکھ کا کلر، گندھاری انار والا نہیں۔ جتنا زیادہ لال آنکھ ہوگی میرے حساب سے اتنا زیادہ کبوتر کا بلڈ پریشر ہائی ہوگا۔ جس طرح ہماری آنکھ، جب ہمارا بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے تو ہماری آنکھیں لال ہو جاتی ہیں، سر کی یہ پڑپڑیاں ہماری گرم ہو جاتی ہیں، ہم کو زیادہ پیاس لگتی ہے، تو یہی چیز بیٹا کبوتروں میں بھی ہے۔ اب یہ کم ہونا چاہیے، زیادہ لال۔ آج کل اب جالی دار آنکھ، میں نے آپ کو پہلے بھی اپنے پرانے انٹرویوز میں بتایا ہوا ہے بیٹا، کبھی بھی کسی بچے کی آنکھ میں جالیاں نہیں ہوں گی۔ جس طرح عمر زیادہ ہوتی جائے گی آنکھوں میں جالیاں آتی جائیں گی۔ اچھا خواجہ صاحب، اب لوگ کہتے ہیں جی یہ امام دین کمگر ہیں، ٹھیک ہے جی، امام دین کمگر میں سلیٹی رنگ آتا ہے لوگ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ اس کے متعلق کچھ بتائیں آپ۔ بیٹا امام دین ایک آدمی کا نام تھا جس کے سے منسلک کبوتر ہوئے تھے قصور میں۔ میر صاحب اس سے سستے زمانے میں ایک کانتوں والا اور ایک مامدین کبوتر سستے زمانوں میں ہزاروں میں کبوتر وہ خرید کے لے کے آئے تھے، تو اس سے وہ منسلک ہو گئے تھے۔ مامدین کوئی ایک بریڈ نہیں ہے، میں نے آپ کو 10,000 دفعہ بتایا۔ اب میرے ایک بھائی ہیں میاں ندیم اسلم، یہ عمران صاحب کے استاد، انہوں کے پاس ایک کبوتر ہیں لال آنکھوں والے، اب انہوں کو وہ جنونی کہتے ہیں۔ اب بیٹا معاف کریں، جنونی کوئی بریڈ تو نہیں ہے۔ اب وہ اگر جنونی کہتے ہیں، اپنے شاگردوں کو وہ دیتے ہیں، تو وہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جنونی کا بیٹا ہے۔ اب جنونی کو بریڈ تو نہیں ہے نا،
जुनूनी तो उन्होंने नाम रखा हुआ है, क्योंकि उनको जुनून है उड़ने का। जुनून है उड़ने का। अब दिलावर खान मरहूम ने अपने कबूतरों का नाम हीरा लाल रख लिया था। एक दफा एक कबूतर उड़ के आया, एक उन्हों का शागिर्द था ख्वाजा इफ्तिखार शायद, या वो मैं नाम में भूल गया तो बेटा मैं माफ करें मुझको। वो फास्ट बॉलिंग भी करता था, बड़ा खूबसूरत सा था। तो उसने वो बच्चा देखा, तो जब कबूतर उड़ के आया बच्चा तो वो बड़ा अच्छा टाइम किया। तो उसने खान साहब को कहा, खान साहब का शागिर्द था, तो उन्होंने कहा खान साहब ए कबूतर कोई उड़ान वाले ने एना दी अखा ही ते हीरे ते लाल ने। एक दफा उसने एक लफ्ज इस्तेमाल कर दिया तो वहाँ से नाम हीरे पड़ गया। और लाल का, तो अब एक नस्ल का नाम पड़ गया हीरे लाल। बेटा ये कोई नस्ल नहीं है। अब जैसे एक फिरोजपुर से लोग कबूतर लाए तो फिरोजपुरी हो गए, फिरोजपुरी, रामपुर से लाए तो हाँ, रामपुरी हो अब गए। राणा साहब हैं चूनिया वाले, उन्हों के पास एक कबूतर है, मज उन्हों का वाले। नाम उन्होंने मज वाले रखा हुआ है। हाँ जी। अब जब कोई बात करते हैं तो कोई किसी जमाने में कोई आदमी आया था, उसने वो कोई कबूतर मांगा या क्या हुआ, तो उन्होंने कहा कि मैनू मज भी दे देगा तो मैं कबूतर नहीं दिया देवांगा। तो अब बेटा उसका नाम मज वाले रख दिया। तो बेटा अब ये कोई अपने अपने नाम है, अपनी अब ब्रीड है। अब एक आदमी ने 5-6 दिन पहले मुझको एक कबूतर दिखाए हैं, तो उसने क्या है, नीचे इंग्लिश में लिखा हुआ है दीज आर इंग्लिश टेडीज। अब बेटा माफ करें, टेडी पैदा हुआ है कसूर में, तो आप उनको कह रहे हैं दीज आर इंग्लिश टेडी। बेटा अब हम कोई अनपढ़ तो नहीं है, पुराने जमाने का मैंने भी बीए किया हुआ है बेटा। तो अब इंग्लिश टेडी, सेठ वाले टेडी तो सेठ साहब ने बड़ी मेहनत करके बनाए हैं, उनको तो अब कह सकते हैं। अब कोई बगले टेडी कह रहा है, कोई गोल्डन टेडी कह रहा है, अब एक नई चीज आ गई है इंग्लिश टेडी। तो बेटा टेडी टेडी है। और टेडी, जो टेडी कबूतर पुराने जमाने में चौधरी सखी के पास थे या मिस्त्री साहब के पास थे, माफ करें अब वो टेडी नजर नहीं आते। परसों चौथ मैं इंटरव्यूज देख रहा था, उन्होंने मेरे भाई अब है, नाराजगी तो फिर वो ही है, उनका इंटरव्यू मैं देख रहा था, बहुत अच्छा मुझको मजा आया। मैंने वक्त पुराना याद करने के लिए मैंने वो देखा, उनका बेटा उनका इंटरव्यू ले रहा था। उन्होंने कहा कि मेरे डैडी जो हैं, नंबर मैंने आप दिया हुआ है, पैदाइशी कोई नंबर नहीं है, 101% बात ठीक है, ब्लड ए के आगे नंबर दे दी। हाँ मैंने देख के। और दूसरे मेरे डैडी जो हैं वो चाल करल के बच्चे निकालते हैं, एक कांटों वाले, एक काले गाटों वाले, एक फीके गाटों वाले और एक सलारे। ये बिल्कुल 101% ठीक है। मेरे जमाने में जब मैं उनके साथ था तो जो सलारे होते थे उन्होंने 8 नंबर दिया था, जो कांटों वाले होते थे उन्होंने 41 नंबर दिया था, जो काले मुंह वाले होते थे कल गाटे, जो नाक से थोड़े से सफेद होते थे, उन्होंने 72 नंबर दिया था। और जो काली आंखों, थोड़े काली आंख नहीं, काली पुतली, ओ काली पलकें थोड़ी सी होती थी, और जिनकी आंख थोड़ी सी नीलाहट पे होती थी, कड़तन पे होती थी, डार्क कलर की होती थी, उनको वो 10 नंबर दे देते थे बेटा। अब इन्हों को आपस में इंटरलिंक कर ले तो आप जो मर्जी बना लें। अब हर आदमी मुझको टेलीफोन करके, अब मैं कहीं पे जाता नहीं सिवाय कमर के या इमरान के, मैं कहीं पे भी नहीं जाता। रात के वक्त मैं प्लाजे पे चला जाता हूँ और उधर भी जाके मैं कबूतरबाजी की बात करता हूँ, पर उनकी कबूतरबाजी में मैं मदाखलत नहीं करता। मैं अपने आप को सेफ फील करता हूँ कि मैं मदाखलत ना करूँ। बेटा ये जो टेडी है, अब हर आदमी
मेरे साथ पुराने तलक चौधरी सखी के थे तो मुझको आके कबूतर दिखाते हैं तो कहते हैं कि बताएं ये कौन सा नंबर है। अब बेटा मुझको कोई अलहाम होना है या मुझको कोई वही अल्लाह माफी नाज़िल होनी है कि मैं बताऊं कि भाई ये इसमें क्या था। अब अगर एक जोड़े का या एक नर का या एक मादी का रंग चौधरी सखी के वो 4 कलरों में से निकल रहा है किसी का निकल रहा है तो ये उसका मतलब नहीं है कि ये उसमें से है। दुनिया के, या मेरी अब बात सुन ले, दुनिया में नीग्रोज हैं, हबशी हैं, जिनको हम इंग्लिश में हम नीग्रो कहते हैं, उर्दू में हम हबशी कहते हैं। अफ्रीका के भी हैं, इंग्लैंड के भी हैं और अमेरिका के भी हैं। हबशी होना अलग बात है, मुल्क का होना अलग बात है। अब जो गोरे हैं, फ्रांस के भी गोरे हैं, वो बहुत नाजुक हैं। इंग्लैंड के भी गोरे हैं, वो भी नाजुक हैं। अमेरिका के भी गोरे हैं, वो थोड़े से सख्त हैं। ऑस्ट्रेलिया के जो गोरे हैं वो सबसे ज्यादा मेहनत करने वाले हैं। जो ऑस्ट्रेलिया के गोरों की रग्बी की टीम है, दुनिया की टीम एक तरफ हो जाए, वो अकेले एक तरफ है, वो इतने ज्यादा सख्त जान है। तो बेटा ये कबूतरों में भी यही चीज है। अब आपने मेरे साथ कभी भी बात करनी है तो बेटा आप मेरे से सवाल कर लिया करें और मैं आपको जवाब दे दिया करूंगा बेटा। ठीक हो गया दोस्तों, दुआओं में याद रखिएगा। टाइम बहुत हो गया, मेरी ड्यूटी का टाइम स्टार्ट हो गया, मैंने निकलना है। तो इंशाल्लाह ताला जी ज़िंदगी रही तो फिर किस दिन बात करेंगे ख्वाजा साहब से। और टॉपिक बहुत ज़्यादा है। एक और चीज़ बेटा मैं बता दूं, ये मेरा जो इंटरव्यू मैंने आपको दिया है बेटा, इसके नीचे कमेंट्स आते हैं। मैं बहुत खुश होता हूँ कि अगर मेरे कोई मुखालफ कमेंट दे तो मैं अपने आप को ठीक करने में मुझको मदद मिलेगी। ख्वाजा साहब एक मिनट, दोस्तों पता क्या बात है, इस उम्र में आके ना इंसान जो है ना उसका किरदार एक बच्चे वाला हो जाता है। ठीक है, ख्वाजा साहब की अब एज ऐसी, अक्सर बातें वो भूल जाते हैं। ठीक है, तो एक मेहरबानी किया करें उनकी, अगर कोई बात बुरी लगा करे तो बराए करम माफ़ कर दिया करें, क्योंकि आपके भी बड़े बुजुर्ग हैं। ठीक है, वो भी अक्सर जब इस एज में पहुंचेंगे या आप भी पहुंचेंगे, अक्सर ऐसी बातें होंगी जो आप भूल जाएंगे। तो ख्वाजा साहब अगर कोई बात भूल जाते हैं, नहीं याद रहती, तो इंसान है। ठीक है, दुआओं में याद रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।